हाय गाइस, इट्स रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्रांड न्यू परफ्यूम का रिव्यू लेकर आई हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी शेयरिंग दिस वीडियो विथ यू। दिस वन इज लताफ़ा सहर। नाउ लताफ़ा सहर 2024 में ही रिलीज हुआ है, एकदम न्यू लॉन्च है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये परफ्यूम रिव्यू करने के लिए। दिस इज हाउ ह्यूज दिस बॉटल इज। द पैकेजिंग इज जस्ट क्रेजी हियर एंड विल गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So talking about the packaging, this is how the bottle looks like. ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर शहर का पूरा डिजाइन बना हुआ है एंड काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव पैकेजिंग है। पीछे की तरफ इंग्रेडिएंट्स और सारी डिटेल्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्टिकर है। एंड ओपन करने पर ये एकदम मैसिव बॉटल यहाँ पे बैठा हुआ है। दिस इज वेरी ह्यूज, लाइक द पैकेजिंग इज वेरी ह्यूज एंड इट्स लाइक वेरी गिफ्टेबल एंड ऑल ऑफ दैट। I also feel that the packaging is just overboard and मुझे थोड़ा सा वेस्टेज सा फील हो रहा है कि that box is going to go in the dustbin because उसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। तो वो एक मुझे चीज़ खटक रही है, बट कोई बात नहीं। दिस इज़ हाउ गॉर्जियस दिस बॉटल इज़। इट इज़ सुपर डुपर हैवी टू अ पॉइंट दैट यू कैन यूज़ दिस बॉटल फॉर योर सेल्फ डिफेंस। बहुत ही सॉलिड, बहुत ही थिक और बहुत ही हैवी बॉटल है ये। एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दिस जायंट ड्रैगन बॉल cap. Otherwise this bottle is pretty okay. It's not that heavy, it is decent. And this is how the packaging is. It looks beautiful. The juice color is amazing and the detailing is in gold. I really like that about it. And this I'm going to use for my home decor, like I'm just going to travel with this bottle without the cap, and then I'll use this for home decor. Atomizer is golden in color and this is how it dispenses the product. I like the way that it dispenses. The quality is good, and let's just apply it as well. So this perfume is again a beautiful gourmand fragrance. It is kind of sweet, it is vanillic, it is almondy, bitter, a slight bit of nutty, and थोड़े से floral touch है इसमें, and it is very warm, it is very cozy, and overall it's a very beautiful sweet gourmand fragrance. Now this fragrance is also said to be a dupe to Tom Ford's Vanilla Sex. To be honest, I have no idea how Tom Ford's Vanilla Sex fragrance is like, because I don't have even a sample and I cannot afford Tom Ford fragrances, so I don't have any reference of the original. So I will just kind of review this fragrance for the way it is. Now let's talk about the notes breakdown. I have written it here. So notes breakdown में top notes में we have bitter almond and cinnamon. Now cinnamon यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है. It kind of binds all the notes together and gives it a hint of spiciness. It's not overly powerful, it's not very weak, it just binds the whole perfume together. The bitter almond note is pretty strong in here, and from the first sniff itself you will get that sweet yet bitter almond and nutty feel in this fragrance. Then it has Akigala wood, pomarose and jasmine. Akigala wood is kind of like a reminiscent of mixture of patchouli, some pepper and some oud like agar wood. तो इसमें ना अकीगाला वुड होने की वजह से एक ऊदीनेस ज़रूर है, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट डज नॉट फील लाइक अ टिपिकल मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, इफ दैट्स वॉट यूर थिंकिंग. दैट middle eastern fragrance wala percentage is very less in this, and Akigala wood is giving a maturity, a touch of woodiness, a touch of green, and kind of like an earthy feel in this fragrance is what I'll say. So that is one of the main ingredients which is bringing that maturity in this fragrance. Pomarose is again like a synthetic note, which is like a combination of fruity or a jammy rose, more like a fruity rose. Again, rose and jasmine are present in this, but मुझे मेरे नोज़ डायरेक्टली उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. ये मुझे एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं लग रही, ये मुझे एक वेनिलिक बिटर आलमंड फ्रेग्रेंस ही लग रही है. So I can comfortably say that this is more like a gourmand fragrance for me, and it does not have any floral dominance. However, florals are kind of like playing in the background. And coming to base notes, इसमें vanilla absolute, tonka bean and amber है. Again, ये तीन notes की वजह से sweetness add होती है. टोंका बीन की वजह से वो
आलमंड का बिटरनेस इंक्रीज हो रहा है एंड एम्बर की वजह से एक बहुत ही प्यारा वार्मथ आ रहा है इस फ्रेग्रेंस में. ओवरऑल इफ यू आस्क मी, दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी यूनिक एंड वेरी काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट. आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ वेनिला इन माई कलेक्शन एंड मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा. नाउ जब मैंने इसकी पैकेजिंग देखी थी ना, आउटर पैकेजिंग, तो मुझे लगा था कि कितनी लाउड आउटर पैकेजिंग है इसकी, एंड मेरा परसेप्शन परफ्यूम को लेके भी उतना ही लाउड हो गया था. मुझे लगा था ये एक बहुत ही हेडेक इंड्यूसिंग बीस्ट मोड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस होगा, इसके ऊपर ड्रैगन बॉल बना हुआ है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बीस्टली एंड एवरीथिंग. बट जब मैं इस परफ्यूम को एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, मुझे ये बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम लग रहा है. मुझे इसकी सेंट प्रोफाइल जो मैंने इमेजिन किया था एंड जो मुझे मिला है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू नो इसमें वो सोफिस्टिकेशन है, इसमें वो सब कुछ है, बट यू नो इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा है. ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस इसकी लाइट है, नो. सॉर्ट ऑफ इज लॉन्ग लास्टिंग, इट्स नॉट वेरी हैवी ऑन प्रोजेक्शन. इट प्रोजेक्ट्स फॉर अराउंड 1 आवर एंड उसके बाद इसका प्रोजेक्शन कम हो जाता है. इट क्रिएट्स अ गुड सेंट बबल अराउंड मी. द सियाज इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक मीडियोकर. इट्स नॉट कि इट फिल्स द एंटायर रूम व्हेन you enter the room. So sillage is also moderate, but it is long lasting and it kind of lingers in a way that you will get the wisp of it again and again, and it may not project too much to others. So I'm still thinking कि ये थोड़ा और जब मैसरेट होगा तब इसका शायद परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है. मोस्ट ऑफ द वेनिला परफ्यूम्स आर लाइक दैट. मेरे ऊपर वेनिला फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव नहीं होते हैं. लाइक नेब्रास के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ लाइक अ बीस्ट मोड ऑन देम. नेब्रास मेरे ऊपर बीस्ट मोड ना कभी था और ना आज तक हुआ है. मैसरेट होके 4 महीने हो चुके हैं एंड द परफॉर्मेंस इज प्रिटी मच द सेम. इट हैज़ बिकम अ लिटिल लॉन्ग लास्टिंग बट नॉट प्रोजेक्टिव. सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग विद दिस वन ऑल्सो, कि ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होगा लेकिन उतना लाउड प्रोजेक्टर होने का चांसेस मुझे कम लग रहा है. Coming to the price point, 100 ml of this bottle, I paid a price point of 2500. I have purchased this from momperfume.com. I have shared my experience shopping at momperfume.com in my previous video in which I had hauled this fragrance. So if you want to know about that experience, you can go and check there. मैं एक फिर से repetitive content यहाँ पे नहीं रखना चाहती, so you can take the reference from there. Overall, the fragrance is beautiful. It's nutty and it can be kind of like said like a watered down version of Ellie Saab's Good Girl for now. And मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो पिस्ताशियो एंड आलमंड का वेनिला के साथ जो वाइट फ्लोरल्स के साथ जो बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लाउड है. ये काफ़ी वाटर्ड डाउन वर्जन लगता है मुझे उसका. परफ्यूम है शागाफ का टोंका ऊद, उसमें भी एक आलमंड वेनिला का फील है, बट दोनों फ्रेग्रेंसेस आपस में काफ़ी डिफरेंट हैं एंड यू कैन कंफर्टेबली गो विथ बोथ ऑफ दीज. काफ़ी डिफरेंसेस है इसमें, सिर्फ एक आलमंडी वेनिला कॉम्बिनेशन इन दोनों में कॉमन है. तो ओवरऑल मैं इसको ओवर स्प्रे करना पसंद करती हूँ. ओवर स्प्रे करके मुझे इसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है. Overall, I'm kind of happy with this purchase and for the price point, I think the scent profile is good. Overall, इसकी rating is 9 out of 10. मुझे परफ्यूम अच्छा लगा एंड मुझे इसका फील अच्छा लगा. ये मैं एक सेफ ब्लाइंड बाय नहीं बोलना चाहती क्योंकि बिटर आलमंड का नोट सबको पसंद नहीं आता. कुछ लोगों को बिटर आलमंड में ऑल्सो कम आउट एज मेडिसिनल, तो इसमें एक कफ सिरप का फील आपको आ सकता है. Only if you are okay with nutty fragrances or a touch of medicinal fragrances, you will like this. Otherwise, you may end up saying कि ये मुझे बिल्कुल एक typical cough syrup का feel देता है just because of that nuttiness gone wrong on your skin. मेरे लिए ये फॉल एंड विंटर या इवनिंग टाइम्स एंड नाइट टाइम के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. आई रियली फील दैट दिस हैज़ दैट मेच्योरिटी एंड डेप्थ एंड इट विल ये ज़्यादा खिल कर आएगा जब आप थोड़ा सा वेदर अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको पहनेंगे. रेनी सीजन में भी ये बहुत खिल के आ रहा है, विंटर सीजन में बहुत अच्छा लगेगा. एंड इसमें एक मेच्योरिटी है जिसकी वजह से मैं बोलूँगी कि 20+ are going to rock this one. This has kind of like a wisdom and maturity to it. एंड जैसे कि इसकी पैकेजिंग बहुत वाइल्ड है, डोंट गो बाय द आउट ऑफ पैकेजिंग. ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है एंड आई थिंक कि एक मेडिसिनल टच होने के बाद भी ये एक ऐसा सेंट प्रोफाइल है जो सबको पसंद आएगा. So that completes my review for Latafa Seher. I am so happy to be doing this review. Latafa के जो recent launches होते हैं वो इंडिया में आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है. So I'm very happy कि अब Middle Eastern fragrances इंडिया में भी जल्दी आ रहे हैं रिलीज़ के बाद and we are able to get our hands on it. So I'm very excited about that and I'm very happy to be doing this review.
I hope that you enjoyed watching this video. If you did, hit the like button. Do subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.